So text number 28. मन्ये त्वां कलाम् इश इष्णाम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the supreme controller without beginning and end, the all pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Taught by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Or I'll read, yeah. Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord who lives in everyone's heart as Supersoul Paramatma. Another name of Paramatma feature of the Lord is Kala or eternal time. The eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by Him. It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion and therefore He knows everything, past, present, and future. And because the Paramatma feature of Lord Krishna destines all actions and reactions, He is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is the cause of suffering. The devotees of the Lord do not misuse their freedom, and therefore they are good sons of the Lord. Others who misuse freedom are put into miseries destined by eternal Kal. The Kal offers the conditioned souls both happiness and miseries. It is all predestined by the eternal time. As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked, for they are all predestined by Kal. No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the result of his own destiny. This destiny is made by the living beings in the course of social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature, and thus everyone creates his own destiny under the supervision of the Supreme Lord. He is all pervading and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is known also as the eternal time Kal. अमेजिंग अमेजिंग पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल लाइंस लिखी हैं इसमें शिला प्रभुपाद ने हम उसको डिस्कस करेंगे अभी तो द फर्स्ट वन ही सेड इज as a as a Paramatma he is in every one of our heart, right? हम सबके हृदय में मौजूद है एज अ परमात्मा और ऑल वी हैव टू हम जैसे दिस इज सोल हमने कई बार वो एग्जांपल देखी होगी कि टू बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, राइट? वन इज डूइंग द कर्मा, वन इज डूइंग ऑल द कर्मा and trying to enjoy the fruit, and other is just witnessing. So the super soul and the soul are the two birds which are sitting inside our heart. तो जो सुपर सोल है वो जस्ट विटनेस कर रही है और सोल है वो सारे एक्शंस कर रही है, थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी द कंट्रोलर. उसको लग रहा है कि जो उसको फ्री विल मिली है और जो ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, बट द थिंग इज सुपर सोल इज कंट्रोलिंग, इज द सुपर कंट्रोलर, राइट? इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वेयर एज soul is also the controller but not the supreme controller. It is one of the controller. For example, अगर मैं अपना हाथ उठाना चाह रहा हूँ तो इसमें दो दो शक्तियों का काम हो रहा है. एक तो माई ओन विल, माई ओन फ्री विल एंड माई ओन, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं उठेगा, बट अगर मैं चाहूंगा भी हो सकता है तब भी ना उठे. अब अगर ये हाथ ऊपर उठा पा रहा हूं मैं,
तो इसमें एक मेरा है और दूसरा जो है वो जो सुपर सोल है उसका भी हाथ है, तभी उन्होंने लिखा ना, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट हिज सैंक्शन। अभी उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है कि मैं हाथ ऊपर उठा पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ। मे बी 30 साल बाद, 40 साल बाद, आई एम नॉट हियर, राइट, आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो तब मैं अगर चाह के भी मैं अपना हाथ नहीं उठा पाऊंगा, राइट। सो देर आर टू कंट्रोलर्स, वी नीड टू नो दैट। वन इज द सुप्रीम कंट्रोलर, अदर इज द माइन्यूट कंट्रोलर, जो हम हैं, राइट। और क्या बोल रहे हैं उसमें भगवान के, कुंती महारानी क्या बोल रही हैं कि आई कंसिडर योर लॉर्डशिप टू बी एटर्नल टाइम, एंड द सेम थिंग इज कृष्णा इज सेइंग इन भगवत गीता, कालोस्मि, कालोस्मि लोक कस्य कृत प्रवर्धो, टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। कालोस्मि, काल ओस्मि, अस्मि मीन्स मैं, आई एम द टाइम, आई एम टाइम, राइट। अब टाइम, टाइम बोलते हैं कि टाइम जो है वो कृष्णा की पोटेंसी है, कृष्णा की पावर है। और टाइम बेसिकली क्या करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमें क्या करता है, पहले वो, फर्स्ट वी ग्रो, राइट, देन वी dwindle एंड देन वी फाइनली डाई। सो टाइम इज बेसिकली ईच एंड एवरी मिनट वी आर डाइंग, राइट। सो दैट इज द पोटेंसी ऑफ टाइम, राइट। और इटर्नल टाइम क्या करता है, इज विटनेस of all our actions, good and bad. Thus, resultant reactions are destined by him. तो एज अ परमात्मा, एज एन इटर्नल टाइम, वो क्या कर रहा है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। वो क्या कर रहा है, हमारे सारे एक्शंस को विटनेस कर रहा है, इट्स लाइक अ चिप। वो हमारे ना चिप है एक तरह से, सुपर सोल को एज अ चिप समझ सकते हो। तो जो भी हमारी डिजायर्स होंगी, अच्छी या बुरी, वो सारी उसमें स्टोर हो रही हैं। एंड भागवतम में आगे हम जब जब हम जाएंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड इन वेरी मच डिटेल कि जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है, जब प्रलय का दिन आता है, तो तब क्या होता है, ये सारी लिविंग एंटिटीज, सारी सोल्स कहाँ चली जाती हैं, महाविष्णु के अंदर। महाविष्णु के अंदर चली जाती हैं, ब्रह्मा की रात हो जाती है, तो वो इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति, वो सो जाती हैं। फिर ब्रह्मा का नेक्स्ट डे होता है, तो फिर वो क्या करते हैं महाविष्णु, बेस्ड ऑन दैट चिप, वो जो चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, वो सारी लिविंग एंटिटीज को बॉडीज मिलने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिजायर थी कि मैं बॉलीवुड में एक्टर बन जाऊं या मॉडल बन जाऊं, ओके। वो मुझे नहीं याद होगा क्योंकि लिविंग एंटिटी तो सो रही है उस टाइम। वो चिप जाके उठाएगी, सुपर सोल कहेगी बेटा याद कर, ये तेरी डिजायर थी, तूने बॉलीवुड में एक्टर बनना था, जाके चलो गो टू बॉम्बे, आई विल टेक अ बर्थ इन बॉम्बे। ठीक है, बेस्ड ऑन माई कर्मा, कर्मा एंड डिजायर। अब कर्मा, डिजायर थी बॉम्बे में जन्म हो गया, बट कर्मा मेरा नहीं था, तो हो सकता है मैं स्पॉट बॉय बन के घूमूं वहां पे। ठीक है, बट अगर कर्मा भी है, डिजायर भी है, देन आई कैन बिकम अ गुड एक्टर एंड कीप ऑन माई, गो ऑन विद माई लाइफ ओवर देयर, राइट। So this is how it works. That is why it is very very important कि हमारे एक्शंस और हमारी डिजायर्स क्या हैं, वेरी वेरी केयरफुली। पहले तो नहीं पता था, पहले तो हम कुछ भी डिजायर कर रहे हैं, वो तो स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल वी कैन, राइट नाउ ऑल्सो वी कैन प्योरीफाई आवर डिजायर। दैट इज वाई चैंटिंग ऑफ महामंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जड़ से, बीजम पूटम, राइट, वो सारा आपका जड़ से वो जो जितनी भी बैड डिजायर्स हैं वो निकाल देंगी, राइट। सो ताकि आपकी सारी डिजायर्स प्योरीफाई हो जाएं और कोई भी मटेरियल डिजायर ना रहे। अगर कोई भी मटेरियल डिजायर रह गई, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस परमात्मा। as a chip, he'll store everything and he'll fulfill your desire, maybe next birth, next to next birth, next to next to next to next birth, but जो भी आप डिजायर करोगे, जो whatever you desire, you will get that। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे और भी डिवोटीज ने इस पे वो रियलाइज किया हुआ है इस चीज को, कि कुछ भी आप डिजायर करो, स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर, इफ यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और आपकी कोई स्पिरिचुअल डिजायर है, 100% वो पूरी होती है। इफ नॉट इन दिस लाइफ टाइम, आज कल कभी भी हो सकती है। ठीक है, सो इट्स गुड टू हैव द स्पिरिचुअल डिजायर्स, राइट। Second is time factor is, as I said, case deteriorates everything in this material world,
राइट, एवरीथिंग गोज डाउन, द बिल्डिंग्स गोज डाउन। आजकल ये जो घर हैं इनकी कितने, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो घर 30-40 साल करते हैं, राइट, उसके बाद खत्म, जीरो वैल्यू उनकी। ठीक है, अभी वो मिलियन का होगा, सिर्फ लैंड की वैल्यू रहेगी। लैंड भी क्या है, अर्थ, इट्स अगेन प्रोवाइडेड बाय कृष्णा, वट एवर इज मैन मेड, इट्स जस्ट डिटीरियोरेट्स, राइट। तो और टाइम की एक और बड़ी अच्छी पोटेंसी है कि once it goes, you cannot take it back. Even after you pay thousands of dollars, you can't just take it back. One more thing about time, it's the mm, biggest healer as well. So अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, something bad has happened, and right now you can't just, I mean, bear it. Just just bear it. Just wait. With time, everything will be healed. Time is called the biggest healer, right? So all we have to do is we have to, as I said, we have to turn our face towards Krishna. अभी हमने अपना 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 फेस किसकी तरफ किया हुआ है? माइंड, माइंड की तरफ किया हुआ है। माइंड को हम ऐसे बोल सकते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉज ईगो, MIE करके इसको याद कर सकते हैं, माई, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो अभी हमारी क्या है कि सारी की सारी एनर्जी अपने माइंड के हम वो बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। वट एवर यू विल से विल डू, राइट, ओके माइंड विल डू दिस, वट एवर हमारा माइंड बोल रहा है, हम उसके दास बने हुए हैं। जो मेरा माइंड बोलेगा मैं वही करूंगा, isn't it? All we have to do is turn our face towards Krishna, towards Paramatma who is witnessing and he is ready to take us, right? तो और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि सारे एक्शन, हाँ, तो जितने भी हमें लगता है कि इट इज नो यूज, द रिजल्टेंट, हाँ, कि हाँ, is eternal of our good and bad reaction, the resultant reactions are destined by him. All he is doing is वो हमारे कर्मों का ही हमें फल दे रहा है, राइट। इट्स नॉट कि वो बैठा हुआ है कि अच्छा अगर तुम मेरी तरफ फेस नहीं करोगे तो आई विल पनिश यू लाइक अ कॉस्मिक पनिशर, नो, ही इज नॉट लाइक दैट। हम भूल गए हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या पाप करके आए हुए हैं यहाँ पे, राइट, बट वो नहीं भूला है। एज अ कांस्टेंट कंपेनियन ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग, right? So he is giving us back our action and reaction, right? This is all is happening, and this is a infinite loop. It keeps on going and going and going unless we burn our karmas and we purify our desires. How we can burn our karmas? By chanting, by taking shelter of Guru, and how we can purify our desire? Again, the same thing. Chanting से डबल बेनिफिट होगा, एक तो हमारे पुराने कर्मा भी बर्न आउट हो जाएंगे, सेकेंडली हमारी जो और जो हमारी डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, वो भी निकल जाएंगी और स्पिरिचुअल डिजायर्स आ जाएंगी उसके अंदर, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट मिस यूज देयर फ्रीडम। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें माइन्यूट फ्रीडम मिली हुई है, राइट, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी हम विद इन अवर व्हाट यू कॉल क्षेत्र, भगवत गीता के 13 चैप्टर में आता है क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, राइट। तो हमारा एक क्षेत्र है, हमारा एक दायरा है, उसके अंदर वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, राइट, बट वी कांट एक्सपैंड अवर सर्कल। इसमें कई बार हमने वो एग्जांपल देखी थी ना उसकी, कि एक एक घोड़ा है, वो घोड़े को बांध रखा है, एक फार्म में घोड़े को बांध रखा है एक 10 मीटर की रस्सी से, राइट। और वो उस अब वो 10 मीटर के रेडियस में वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वो वहां पे घास खा सकता है, दौड़ सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, सो सकता है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। और एक दूसरे वाले फार्म में 20 मीटर की रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है, वो 20 मीटर के रेडियस में कुछ भी खा पी सकता है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। अब 10 मीटर वाला घोड़ा अगर 20 मीटर वाले घोड़े को देखेगा और बोलेगा कि यार ये तो इतनी दूर तक जा रहा है, एंड व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू एक्सपैंड, राइट। उसके गले में रस्सी बंधी हुई है एंड ही इज ट्राइंग टू पुल इट, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। वो 10 मीटर से 11 मीटर भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिन्ड है, उतना ही उसको मिला है फ्रीडम। उसकी फ्रीडम 10 मीटर की है, दूसरे घोड़े की फ्रीडम 20 मीटर की है, बेस्ड ऑन देयर previous karma. But what they can do within that within that radius, that is up to that घोड़ा, right? So अगर वो ट्राई करेगा दूसरे घोड़े को देख के अपनी 10 से 11 या 10 से 20 करने की,
व्हाट विल हैपन, उसके नेक में यहाँ पे पेन होगी, खून आएगा, और कुछ नहीं होगा, राइट? सो इसीलिए व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम हियर इज कि वी शुड नॉट मिस यूज अवर फ्रीडम एंड वी शुड वर्क whatever freedom we have, whatever circumstances, whatever situations we have, within those situations we should work best for Krishna. So Krishna को क्या बोलते हैं, भाव ग्रही जनार्दना. तो ही इज जस्ट लुकिंग फॉर द भाव. वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है. जैसे हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. ओके, मुझे रिजल्ट चाहिए, इतने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए एट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर वन, राइट? सो अगर वो नहीं होता, आई डोंट केयर वेदर यू वर्क 10 hours, 12 hours, 8 hours, right? Whereas Krishna is saying, okay, I don't bother about results. If you work for 1 hour, 2 hour, all I am looking for is your endeavor, your bhav, right? So this is what Krishna is. So if we are misusing the freedom, then it will be जो minute freedom मिली हुई है हमें 10 मीटर की या 20 मीटर की, उसमें हम how well we can serve Krishna, this is what Krishna is looking for. राइट? हो सकता है एक डिवोटी जाके जैसे हमने देखा है ना, हमारे टेम्पल में कितने सारे डिवोटीज हैं. एक डिवोटी जाके बहुत कुछ कर रहा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, वो भागवतम की प्रीचिंग भी कर रहा है, वो कुकिंग भी कर रहा है, और भक्ति वृक्षा भी खोला हुआ है अपना. एवरीथिंग ही इज डूइंग, ही इज एम्पावर्ड काइंड ऑफ लाइक. और दूसरा डिवोटी है, वो बेचारा एक ही सर्विस कर पा रहा है, मान लो, राइट? हफ्ते में सिर्फ एक बार मंदिर जा पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस, राइट? So who is doing more and who is doing less? You can't say that because अगर वो दूसरा बंदा एक बार भी मंदिर जा पा रहा है, you don't know their circumstances, you don't know their freedom, their minute freedom. Maybe because of their previous karma, that freedom is less. But within that freedom, he is dedicating more time. और same goes with the charity as well. अब एक बंदा $100 दे रहा है चैरिटी में, एक बंदा $10 दे रहा है चैरिटी में, बट वो $100 जो दे रहा है, हो सकता है उसकी सैलरी $1,000 हो, और हो सकता है जो $10 दे रहा है उसकी सैलरी $50 हो, राइट? सो वी कांट जज फ्रॉम एक्सटर्नल्स के हाउ मच इट इज. ओनली कृष्णा नोज दैट. एंड वट एवर वी आर डूइंग विद इन आवर ओन लिटिल माइन्यूट फ्रीडम, दैट मैटर्स, isn't it? सो सो एक डिवोटी जो है, वो सारी अपनी लाइफ अपनी फ्रीडम को मिसयूज नहीं करता, राइट? एंड as a result, he he is preparing himself for the death, right? At the time of death, he is not afraid at all, he doesn't cry. Whereas a non-devotee, he cries because he doesn't know what's in के मरने के बाद क्या होगा. Whereas devotee को पता होता है कि जब काल आता है, जब एंड टाइम आता है, तो उसको पता है, he is prepared, he is rather happy what's going to happen, because he knows कि मेरे को, अब मैंने अपनी सारी लाइफ किसके लिए जी है और मेरा एंड क्या है, क्या क्या होने वाला है. ही नोज दैट वेरी वेल, राइट? इसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अब एक लड़की की अगर जब शादी होती है तो वो रोती है, राइट? तो वो दो रीजन से रोती है जब उसकी डोली जाती है. तो एक तो क्या होता है कि वो अपने जो अटैचमेंट होती है अपने मदर फादर अपने सिबलिंग्स, उनसे बिछड़ रही होती है, तो दैट डिटैचमेंट हो रही होती है, तो उस वजह से रोती है. एंड सेकंड रीजन इज द अननोन फैक्टर, कि पता नहीं नेक्स्ट घर में जाके क्या होने वाला है मेरे साथ, राइट? यू डोंट नो दैट पर्सन ऑल टुगेदर, राइट? इन इन केस ऑफ अरेंज मैरिज. इसी चीज को अगर मैं लव मैरिज में देखूं, तो लव मैरिज में मान लो 3-4 साल का कोर्टशिप हुआ है, उसके बाद अगर शादी हुई है, तो एटलीस्ट दैट अननोन फैक्टर इज नॉट देयर. You know that person, you know that person's family, so in that case it is not that painful, right? That departure from your parents house. So the same way, डिवोटी को पता होता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, उसका प्रेम, उसकी अटैचमेंट कृष्णा के साथ ऑलरेडी बनी होती है. तो यही कुंती महारानी कह रही हैं कि बिफोर एवरीथिंग गोज आउट फ्रॉम योर लाइफ, वी शुड बी अटैच टू कृष्णा. ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे करके वो सब चीजें जानी है. आपके पेरेंट्स जाएंगे, आपके सिबलिंग्स जाएंगे, अगर आप सबसे छोटे हो तो यू हैव टू सी एवरीवन डाइंग देयर. मैं सबसे घर में छोटा हूँ, राइट? तो मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी सिस्टर को कि यार आई एम, अब वो सिस्टर को कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बोलती है कि हाँ मेरे एड़ी में दर्द हो रहा है, मेरे नी में दर्द हो रहा है,
किसी के यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने कहा बेटा तुम सब सबके दर्द मेरे को ही देखने हैं, मेरे को ही सुनने हैं, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, राइट। तो यू हैव टू सी अ लॉट। धीरे 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 करके आपको सब लोग छोड़ते हुए जाएंगे, राइट। फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे छूट जाती है। सो बाय दैट टाइम, अगर एंड टाइम पे सिर्फ अगर कोई नहीं है आपके पास, तो कृष्णा, जब तक अगर कृष्णा के साथ अटैचमेंट नहीं है, यू विल बी वेरी लोनली। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बूढ़े हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, who die a lonely death, right? Even though they have so much with them. अभी एक मैं डिवोटी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला, कहते एक बहुत डिवोटी है वो, एंड ही इज वेरी वेरी रिच कार्डियो स्पेशलिस्ट। कार्डियो, और यहाँ पर स्पेशलिस्ट कार्डियो की सैलरी होती है कुछ 300,000 400,000 की रेंज में। और उनके बच्चे भी आगे डॉक्टर्स, एंड दे आर टू वेल सेटल्ड। अब उनको क्या हुआ, उनको डिमेंशिया हो गया, बूढ़े हो गए हैं, तो डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया होने के बाद उनकी सेहत ना डाउन जाती गई। तो उन्होंने बोला कि अब दिखाओ इनको। तो बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो फिर भी उन्होंने दिखाया, तो उनको पता चला कि उनको तो कैंसर है। नाउ लुक एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो बोल रहे हैं कि हमें इनको घर पे रख लो, हमारे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं है। कौन बोल रहा है? जो कार्डियो, जो स्पेशलिस्ट है, जिसकी पर ईयर पर एनम जिसकी सैलरी 400,000 है, बच्चे उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, राइट। तो कहने का पॉइंट ये है कि धीरे 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 एवरी वन विल लीव यू, राइट। सो इफ यू डोंट हैव अटैचमेंट टू कृष्णा, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू विल क्राई like a girl who doesn't know what's in stock, right, for you. But if you know that okay, you are dying, which is good, तो बोलते हैं कि death is an examination and your life is preparation for a devotee. तो वो एग्जाम के लिए जितने अच्छी तरह से आप रेडी होगे, उतना बेटर होगा, right? If you practice your life in Krishna consciousness. All right. So next is what is saying, in distributing your mercy, you are equal to everyone, right? So Krishna, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कृष्णा पार्शियल हैं, इम्पार्शियल हैं, राइट। सो बट इट इज वेरी वेरी क्लियर कि कृष्णा इज impartial. ये नेक्स्ट वर्स में भी आएगा, आई कवर इन दिस वन एंड देन विल रैप अप बोथ द वर्सेस टुगेदर। तो क्या कृष्णा इम्पार्शियल है या कृष्णा पार्शियल है, राइट? दिस क्वेश्चन कम्स अप वेरी ऑफन। तो कृष्णा क्या है? ही इज इम्पार्शियल। क्यों? इन वन सेंस, एवरीवन कैन डू भक्ति, राइट। नो वन, कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा तुम शूद्र हो, तुम स्त्री हो, तुम ये हो, तुम नो, एवरीवन कैन डू भक्ति, राइट। In that sense, it is Krishna is impartial, right? So we can say it as a big circle. अगर एक बड़ा सर्कल लें, वो क्या है? impartial का सर्कल। बट अब उस impartial वाले सर्कल में कुछ लोग ले पाते हैं भक्ति, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब जो भक्ति कर रहे हैं, वो क्या आ जाते हैं कृष्णा के इनर सर्कल में। दो सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, राइट, इफ यू कैन कॉम्प्रिहेंड। तो वो लोग इनर सर्कल में आ जाते हैं, एंड टू देम कृष्णा बिकम पार्शियल, और यू कैन से he reciprocates. He's not partial, but he reciprocates with them more, right? It's as simple as that. और वो कृष्णा भगवत गीता में भी बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। I reciprocate whosoever comes to me, I reciprocate in equal proportion, right? तो अगर कोई मेरे साथ ज्यादा कर रहा है, कोई मेरे पास आना चाह रहा है, तो obviously I'll let him come. In that sense, you can say he is partial, but anyone can come into that inner circle. In that sense, he is impartial, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, अगर स्कूल में 60 बच्चे हैं क्लास में, उनको टीचर पढ़ा रही है, तो क्या 60 के 60 बच्चों के सेम सेम नंबर आएंगे आउट ऑफ, जब एग्जाम होगा? नो, सबके अलग अलग मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है समझने का। मे बी कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, मे बी आफ्टर क्लास ऑल्सो दे आर गोइंग टू टीचर एंड आस्किंग डाउट्स एंड गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर, राइट। और कुछ हो सकता है वो नहीं सुन रहे, नहीं बॉदर कर रहे, राइट। सो इन दैट सेंस, सेम क्लास में, फ्रॉम टीचर साइड, टीचर इज impartial, distributing knowledge to all of the kids, right? All of the 60 kids. But everyone will not be at the same level.
Same goes with Krishna, right? Krishna gives that knowledge to everyone, gives that mercy to everyone. In distributing your mercy, you are equal to everyone. That mercy is there for everyone. Everyone can come and grab it, but not everyone takes it. That's the point here, right? हर कोई लेता नहीं है. So that's thing. Yeah, and yeah. Now again on the misuse of freedom. Again, this goes for the freedom as well, right? We have that freedom. अब हमें कृष्णा की mercy is coming, but we have that free will whether we want to take it or not. अब आज क्लास हो रही है ये. अब that is happening from 7 to 8, right? Monday and Thursday. But आप लोगों की free will, you used your free will, I use my free will to give the class, you use your free will to take the class, right? कल को मैं भी मिसयूज कर सकता था अपनी फ्रीडम को, अपनी इस माइन्यूट फ्रीडम को, सेइंग दैट विष्णु प्रेशर प्रभु कैन यू प्लीज डू दैट, आई एम बिजी इन दैट, आई एम बिजी इन दैट वर्क और सो, राइट? आई कुड हैव सेड दैट, but I said no, I'll take it whether I am prepared or not, but at least I'll listen something, right? At least I'll read something, and at least we'll do some Krishna katha, right? Same goes with you as well, right? आप इस टाइम में कुछ भी कर सकते थे. आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर की शाम को फेस्टिव सीजन है, राइट? व्हाट वी आर डूइंग इज कृष्ण कथा. सो अगेन यू आर यूजिंग योर minute freedom. You are not misusing, because devotees of the Lord do not misuse their freedom, right? हम शॉपिंग के लिए जा सकते थे, कल बॉक्सिंग डे है, उसके लिए शॉपिंग के लिए जा सकते हो. या हम अपने फ्री टाइम में, हम जो हमें अगर इन केस हमें फ्री टाइम मिलता है, अगर हमारे 16 राउंड्स भी हो गए हैं, क्या हम एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं? क्या हम भगवत गीता पढ़ते हैं? क्या हम भागवतम पढ़ रहे हैं? क्या हम लेक्चर्स को लिसन कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन अस. अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है ना, इफ यू आर थिंकिंग ओके आई वांट टू रिटायर, द बेस्ट वे टू नो इज, अगर आपने सब कुछ कर लिया है और आपके पास फ्री टाइम है, तो उस फ्री टाइम में व्हाट यू आर डूइंग विद योर फ्रीडम, जो वो फ्री फ्री टाइम मिला है आपको, उसमें आप क्या कर रहे हो? क्या उस टाइम में आप भागवतम की तरफ आपका हाथ जा रहा है भागवतम को उठाने के लिए, कि रिमोट या मोबाइल की तरफ जा रहा है उसको उठाने के लिए? isn't it? So that based on your attachment, your interests. So what we are trying to do here is, we are trying to, अभी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम वो बन गए हैं, but what we are trying to do is, हम अपनी जो minute freedom है उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिसयूज ना करें. जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको हम कृष्णा को ही वापस डिवोट करें. नहीं तो कृष्णा को क्या लगता है वो टाइम वापस लेने में? जस्ट ही कैन टेक इट एनी टाइम, राइट? कुछ आपको बीमार कर दे, या कुछ आपको ऐसी जॉब में ल्योर कर दे कि जिसमें आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना है, राइट? यू कांट, यू विल नॉट हैव दैट टाइम, राइट? सो इफ कृष्णा हैज मेड योर लाइफ इजियर एंड you have some spare time, we should be very very grateful, and we should give that time in service of Krishna, not in service of Maya, right? We have to use our time very very judiciously. हमारे पास already इतनी responsibilities हैं, right? So we need to cut, बहुत सारे काम हैं, and we need to see कि कौन से काम are less important, so that we can take away from our life and fill in spirituality. जितना हम spirituality भरेंगे और material task को postpone करेंगे, which are not important. I'm not saying कि बिल्कुल अपनी material life को neglect कर दो, but there are definitely some tasks which we can take out of our life and put Krishna consciousness into it. Right. The last thing which Srila Prabhupada is saying in this purport is that destiny is made by the living beings in force of social intercourse. Amazing. Again, मतलब, no one can even think of this, right? Only Srila Prabhupada can write this. कि आपकी destiny कैसे बनती है? Each and every second, your destiny is, you are making your destiny. You are making your next body. और वो नेक्स्ट बॉडी किसके बेस पे बन रही है? बेस्ड ऑन द सोशल इंटरकोर्स. कैसे लोगों से आप मिल रहे हो, और आप क्या कर रहे हो उन लोगों के साथ, राइट? तो एक देवकी माता जी जब आए थे, कितना अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया था, अटैचमेंट एंड एवर्जन. जब भी हम
सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, दीज टू थिंग्स हैपन। अटैचमेंट, या तो हमारी उनके साथ अटैचमेंट होती है, वी लाइक देयर कंपनी, राइट, एंड या जब हम मिलते हैं तो पहले तो हम लाइक करते हैं, बाद में क्या हो जाती है, एवर्जन हो जाती है, उसकी कोई क्वालिटी कोई बात हमें पसंद नहीं आती, कुछ हो जाता है, देन वी स्टार्ट doing aversion with that person, isn't it? So these both things are binding in nature. If you are attached to someone, that will also bind you in this material world, right? अगर वो मान लो एक अटैचमेंट है किसी के साथ और वो भक्ति नहीं कर रहा है, so he is definitely staying in this material world. But and because you have attachment with that person, अगर आपने भक्ति कर भी ली है, but you are attached to that one person who is not doing bhakti, he will pull you back. You will have to come back here because you are attached to that person, right? And the same goes with the aversion as well. अगर तुम किसी को हेट कर रहे हो, किसी को किसी की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हो, चाहे वो डिवोटी भी हो, राइट, उस पर भी देवकी माता जी ने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए थे अपनी क्लास में, रीइंकारनेशन पे, राइट, अगर किसी को याद हो तो तो अगर किसी से अवर्जन भी है, so that will also bring you back. So it is very dangerous. So you have to अपना खाता यहाँ पे ना इस मटेरियल वर्ल्ड में पूरा न्यूट्रल करके जाना है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, राइट? सो बट एट द सेम टाइम अगर वो अटैचमेंट एक साधु के साथ है, देन इट इज फाइन। अभी थर्ड कैंटो में भागवतम में आता है, एक बहुत अच्छा वर्स आता है, ये कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बोल रहे होते हैं, प्रसन्नम अजरम पाशम आत्मना कवयो विधु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो क्या बोल रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम। तो ये जो अटैचमेंट है, इट्स लाइक अ पाश, इट बाइंड्स यू इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट स एव साधुषु कृतो, बट अगर सेम अटैचमेंट इफ यू रीडायरेक्ट इट टुवर्ड्स साधुज, sadhus are liberated, right, already liberated souls who have come here for our deliverance, अगर हमने वो अटैचमेंट साधुओं की तरफ कर दी, सो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मोक्ष के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे, राइट? सो ऑल वी हैव टू डू इज, जो हमारी अटैचमेंट हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ है, जो नॉन इन केस हमारे नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं उनके साथ है, so we should not be attached, we should redirect that attachment towards sadhus, and in that way हमारा वो मटेरियली भी हम ग्रो करते रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, राइट? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, द डेस्टिनी इज मेड बाय लिविंग बीइंग्स इन द कोर्स ऑफ सोशल इंटरकोर्स। मैंने ये लाइन पढ़ी, मैंने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज किया कि वो डेस्टिनी भी आपकी इन चीजों पे डिपेंड करती है। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? तो नेक्स्ट वर्स कर लें, कर ही लेते हैं, अभी हैं 13 मिनट, 13 मिनट है, हाँ। ये सिमिलर लाइंस पे ही है, सो विल क्विकली फिनिश इट ऑफ। न वेद कश्चित् भगवांस चिकिस चिकिश चिकीर्षितम् तवेहमानस्य निर्णाम विदम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर कर्हिचित् देवस्य च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial, that we have already covered, right? So we can quickly finish it off. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read the purport? Yes. Hare Krishna. The Lord mercy upon the fallen soul is equally distributed. He has no one as a specific object of hostility. The very conception of the personality of Godhead as a human being is misleading. His pastime appear to be exactly like human beings, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees,
but in fact, he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. By utilizing the sun rays, sometimes even the stones become valuable, whereas the blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. Darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial in distributing its rays. The sun rays are open to everyone, but the capacities of the receptacles differ. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get special mercy. Factually, the pure devotees who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. A mercantile house renders service to someone in exchange for values. The pure devotees does not render service unto the Lord for such exchange, and therefore the full mercy of the Lord is open for him. Suffering men, needy men, inquisitive persons, or philosophers make temporary connections with the Lord to serve a particular purpose. Uh, Prabhu, I just lost your track. Yeah, when the purpose is served. Yeah, when the purpose is served, there is no more. Excuse me. Hare Krishna. When the purpose is served, there is no more relation with the Lord. A suffering man, if he is pious at all, prays to Lord for his recovery. But as soon as the recovery is over, in most cases, the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness. Those who ask for the Lord's favors only at time of necessity are partial recipients of mercy of the Lord, and those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. Such partiality in the receiving the Lord's mercy is relative to the recipient, and it is not due to the partiality of the all merciful Lord. When the Lord descends to the material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that Lord is partial to his devotees only, but that is not a fact. Despite such apparent manifestation of partiality, his mercy is equally distributed. In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of Lord got salvation without the necessary qualifications, because death before the presence of the Lord purifies the passing souls from effect of all the sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. Somehow or other, if someone put himself open in sun rays, he is sure to get the requisite benefit both by the heat and by the ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial. Hare Krishna. तो इस पे काफी बड़ा उन्होंने प्रभुपाद ने लेक्चर दिया कि उस पे पार्शियलिटी पे। आई होप वो हम सबको पिछले उसमें जब हमने डिस्कस किया जो अभी तक हमने उसमें क्लियर हो गया होगा, बट आई विल गिव यू स्टिल सम एग्जांपल्स कि जब कृष्णा यहाँ पर थे, he was impartial actually, right? He was in the same two-handed form. वो सबके लिए वैसे ही थे, बट ऐसा क्यों था कि जो गोपियां थी, जो पांडव थे, वो कृष्णा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, एंड दे वर मैडली इन लव विद कृष्णा, राइट? वेयर एज ये शिशुपाल जैसे लोग हो गए, या जरासंध जैसे लोग हो गए, या ये दुर्योधन जैसे लोग हो गए, ये लोग कृष्णा को अपना दुश्मन समझते थे, राइट? अब कृष्णा संधि प्रस्ताव लेकर गए वहां पर हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने रादर देन लाइक ही शुड बी हैप्पी, लाइक कृष्णा जिसको देख के ही लोगों को मुक्ति मिल जाती है, वही वो बता रहे हैं ना कि बैटल फील्ड में इतने सारे जो वो मरे हैं, वो लास्ट टाइम वो कृष्णा को देख रहे थे और उनको मुक्ति मिल गई, एंड एट द सेम टाइम वो दुर्योधन जैसे लोग हैं, उनको उनको प्यार ही नहीं आ रहा कृष्णा पे। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज दे डोंट हैव द रिसेप्शन, वो रिसेप्शन नहीं है। अब वही बात है, अब जैसे वो सेम एग्जांपल आती है ना, उसमें इन्होंने सन की एग्जांपल दी है जैसे प्रभुपाद ने, कि सन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट? एवरीवन कैन सी इन द सन, बट जो ब्लाइंड है, he cannot see anything, he cannot see sun because that's his own capacity, that's his own limitation, right? तो तभी बोलते हैं भागवतम
भी इतनी ज्यादा वास्ट है, तो इसमें हर एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। Based on his consciousness, based on his purity, he can extract as much as as per his capacity, right? तो एक बहुत अच्छी जिसकी कॉन्शियसनेस है, जिसकी बहुत अच्छी चैंटिंग चल रही है, बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, वो सेम भागवतम में से, सेम वर्स में से ही कैन टेक आउट सो मच आउट ऑफ इट। वेयर एज पीपल लाइक अस, आई मीन पीपल लाइक मी आई वुड से, तो वी कैनॉट टेक एज मच बिकॉज आवर भक्ति इज नॉट एट दैट लेवल, राइट? So that is the point here. So हमारी consciousness, हमारी chanting helps a lot in that. अगर हमारी chanting अच्छी attentive chanting चल रही है, so we'll be able to grasp more. We will be able to receive more from the same thing, right? तो कृष्णा अगर हमारे सामने आ भी जाएं, तो वही तो वो बोल रहे हैं वहाँ, which appear to be human and are so misleading, right? अब सेम चीज कृष्णा कर रहे हैं, तो जो भक्त है उसके लिए वो बहुत मधुर है वो, राइट? वेयर एज जो नॉन डिवोटी है उसके लिए वो मिसलीडिंग है। एंड कृष्णा ऑल्सो सैंक्शंस दैट। तो हमें भगवत गीता में हमने देखा, वो 16-17 चैप्टर में वो यही बोलते हैं कि जो मेरे में फेथ नहीं रखता, मैं उसको वैसी ही बुद्धि देता हूँ टू, ताकि वो और दूर चला जाए मेरे से। जो मेरे पास आना चाहता है, आई गिव हिम दैट बुद्धि बाय विच ही कैन कम टू मी। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, right? So that's one thing, and 5 minutes again, I'll quickly wrap up. And another thing which Prabhupada is saying here is the pure devotees and mixed devotees. He is, तो इसमें मैंने एग्जाम दिया था, तो मैं I'll pull up that. और हाँ, एक और मैं स्टोरी इसमें बता दूं। um, एक तो दुर्योधन वाली बताई थी, और एक ये नरसिम्हा। अब नरसिम्हा, ये सॉरी, हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद तो मर ही नहीं रहा, उसने सब ट्राइज कर ली, हर तरह की उसने कोशिश कर ली, उसको क्लिफ से फेंक दिया, उसको आग लगाने की, हर तरह से उसको ट्राई कर लिया, लेकिन वो नहीं मर पा रहा है। अब इन द एंड हिरण्यकश्यप पूछ रहा है प्रहलाद से कि तेरे को इतनी शक्तियां कहाँ से मिल रही हैं? तो प्रहलाद बोल रहे हैं, कहता मुझे वहीं से मिल रही है शक्ति जहां से आपको मिल रही है, विच मीन्स ही इज इम्पार्शियल। लॉर्ड वही शक्तियां सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू टैप ऑन टू दैट एनर्जी, राइट? विच आई एम एबल टू टैप इन। Isn't it interesting? So the second thing which he's saying is, Srila Prabhupada saying in the purport is, um, that pure devotees and mixed devotees, that is also again the same reception. क्या क्या रिसेप्शन है, क्या क्या प्रॉब्लम है दोनों में? डिफरेंस है कि दे आर रिलक्टेंट टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज ओपन फॉर ऑल, बट अ मिक्स्ड डिवोटी इज रिलक्टेंट टू रिसीव इट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर एंड अ मिक्स्ड डिवोटी। अब नेक्स्ट में उन्होंने वो सारा दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, बट मैंने वो एक टेबुलर फॉर्म में दिया है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। और ये मेरे एग्जाम में था, तो आई हैव इट इन माय नोट्स। आई होप एवरीवन कैन सी इट, राइट? तो डिफरेंस क्या है एक प्योर डिवोटी और मिक्स डिवोटी में? व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो इज बिकॉज it helps. Right now we are at mixed devotee stage, so we should know what it takes to become a pure devotee. What is lacking in us which is stopping us from becoming a pure devotee? अब mixed devotee क्या है? हमें क्या है, थोड़ा सा मटेरियल बेनिफिट भी चाहिए, थोड़ा सा मटेरियल एनर्जी को भी इंजॉय करना है, ठीक है? थोड़ा सा बंगला, थोड़ा सा गाड़ी, थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा मूवी, थोड़ा सा क्रिकेट मैच, सब कुछ चाहिए। वेयर एज प्योर डिवोटी को कुछ नहीं चाहिए, ही ओनली वांट्स द सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द लॉर्ड। He does not want to enjoy separately from him, whereas we want to enjoy separately from him. अब आप बोलोगे how? We want to watch movie, we want to spend time with our friends, not doing Krishna Katha, or we want to do all number of other things in which there is no involvement of Krishna, जो कि कृष्णा के लिंक में नहीं है कोई भी चीज, right? We do that stuff, right? We all know, right? Whereas a pure devotee does only for the satisfaction of Krishna, right? Second, we want relief from miseries. अगर अभी कोई मिजरी आ जाए हमें, कृष्णा प्लीज 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 प्रोटेक्ट अस, प्लीज ये ठीक कर दो मेरे को, या ये कोई मुझे एलिमेंट हो गई, मुझे ठीक कर दो,
Whereas जो प्योर डिवोटी है उसको मिजरीज का कोई इफेक्ट ही नहीं होता. वो मिजरीज को क्या लेता है? एज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड. एंड रादर देन गोइंग टू कृष्णा फॉर सेइंग कि मुझे रिलीफ फ्रॉम मिजरीज, ही गोज ही टू कृष्णा विद फुल फेथ, ही वर्शिप्स हिम मोर. राइट. और उसको वो एज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड लेता है. नेक्स्ट इज, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. वेयर एज एक प्योर डिवोटी को कृष्णा क्या देते हैं? मिस्टिक पावर्स देते हैं. बोलते हैं वो अष्ट सिद्धियां. अष्ट सिद्धियां देते हैं उनको, जो लाइटर देन द लाइटेस्ट है, हैवियर देन द हैवीएस्ट. तुम अपने माइंड से ही, बहुत सारे जो योगीज होते हैं, दे हैव दोज पावर्स, राइट. और ओपुलेंसेस देते हैं उनको. बट दे, विदाउट इवन आस्किंग देम, बट दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट. Right? They even reject liberation if granted by Lord. Forget about these material opulences. Right? वो भी नहीं लेते हैं. Whereas हम जो mixed devotees हैं, they look pious, right? But and we want to get a higher elevation, elevate to higher planets, but we come back to the material worlds once pious credits are over. I think time हो गया. I'll quickly wrap up. हम नॉलेज में भी एडवांसमेंट अपनी चाहते हैं, ज्ञान योगा भी चाहते हैं. वेयर एज जो प्योर भक्त है, जो प्योर डिवोटी है, ही जस्ट वांट अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ ज्ञान एंड कर्मा. isn't it? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम. ज्ञान और कर्मा के साथ नहीं चाहिए हमें. राइट. प्योर डिवोटीज को, pure devotees are totally attached from it, detached from the material things, and as a result controls the material energy. Rather than material energy controlling them, they control the material energy. Whereas a mixed devotee, हमारी बहुत सारी material attachments होती हैं, and as a result we are subjugated by the material energy. I know I can't explain much because of the time constraint. Maybe we can discuss it next time if you have any questions, comments. All good? Fine then. All right, we'll stop then. Hare Krishna. Hello, Hare Krishna. Hare Krishna, Adya. You are very lucky to listen Srimad Bhagavatam. That's such a, Yes, please pray for us, Prabhu. Hare Krishna. these are not normal kids, right? Who are Oh, yes. Very blessed. Very blessed. best kids. Blessings दो कि आध्यात्मिक बनती जाए और भी One आगे. bless, I can pray. No one to bless. Yes. Please do pray. Can pray. Yeah, yeah, definitely. Prabhu. Hmm. Good. When are you coming back? उसका पासपोर्ट का ही वेट कर रहे हैं प्रभु जी. उसका पासपोर्ट फरवरी तक आ जाएगा होपफुली. देन विल लीव इन फरवरी. Okay, good. Good. Yeah. सिटीजनशिप एप्लीकेशन फाइल हो गया है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. Okay, nice. All on track. Good. Nice. All right then. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. जय की जय. जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.